So that was the command we have done. We have created the table and okay. We can write our query at two places. One at this place, SQL Workbench. Another one is the SQL prompt. Okay. So what we were doing the previous class, that first command that we must do is to just check all the databases there. When you have a lot of them and you know which database to connect, we have a in particular business scenario, you don't choose your database every day. You work on a very few databases in a company. In that case, what you can do while creating this connection, you can create a connection with a default database. Okay, that is possible. So every time you don't need to simply select which database to work. Okay, so यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि लेकिन हम यहाँ पर करेंगे डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे पहले वी विल सेलेक्टिंग द डेटाबेस कैसे करेंगे यूज अस करके है ना तो अगर कौन कौन से डेटाबेस से जानना है तो क्या करना है शो डेटाबेसेस databases and my database is see, use and so the tables so tables and we are working on this EMP table right now first, then we'll working on the other table also. So सारे के सारे record देखने हैं, select asterisk from table A. Okay, previous day हम लोग different operators देखा था, less than, greater than, equal to. We have learned कि null होगा तो we will not be using equal to, but we will be using less than, each, not is, with commission, the table having the having null values. Okay, और हमने certain operators देखे थे, addition, subtraction, multiplication, division is very very easy. हम simply क्या कर सकते हैं, column का name और उसमें multiplication या division है वो लगा सकते हैं, provided that कि वो जो values हो वो string नहीं हो, है ना, वो numeric होना चाहिए. And we have also learned how to restrict the values. ठीक है, restriction से फिर शुरू करता हूँ, थोड़ा कुछ कुछ command और repeat कर लें पहले the 5 minute. Okay, so restrict करने का तरीका क्या है? Select, I just want to strict from EMP, where लगाना है, where क्या है? I just want to see all the managers. Where job is equal to, because it is a string we know, तो हमें क्या करना है, कोट के अंदर डालना है. ठीक है, MANAGER. ठीक है, सो वेयर लगाकर हम क्या कर सकते हैं, फिल्टरिंग कर सकते हैं. वी कैन यूज एंड और इस क्वेरी को और इम्प्रूव कर सकते हैं. तो जॉब इज इक्वल टू मैनेजर एंड DPTNO इज इक्वल टू 10. ओके, ठीक है. ओके, सो हमने एंड और लगाया था, बिटवीन लगाया था. तो आज एक नया क्वेरी करेंगे. वी विल बी यूजिंग अ कमांड लाइक यूज करना सीखेंगे. ठीक है, anyone has any query, any question about what we have done yesterday? कोई particular operator के बारे में have anyone any query, any question? They can just put in chat. Okay, I'm starting with like command. Okay, string के अंदर पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फिल्टरिंग करेंगे like कमांड के सारे. So what
what the like command is. Just see. Select asterisk from EMP where ename like. अब यह देखिए कि like को there is one question here. Okay, let me see. Revise after that. Okay, okay, कर दूंगा. तो अभी हमें क्या करना है, एक नया कमांड या नया ऑपरेटर देख रहे हैं, लाइक, है ना. तो ये जो लाइक ऑपरेटर होता है इसके साथ दो वाइल्ड कार्ड यूज होते हैं. ठीक है. तो पहला वाइल्ड कार्ड जो होता है वो होता है परसेंटेज. लाइक, और लाइक के बाद हमें कोट में लिखना होगा बिकॉज वी डू इट विथ ओनली स्ट्रिंग. ठीक है. तो लाइक स्पेस दे दें एंड वी जस्ट वांट ऑल द नेम जस्ट स्टार्ट विथ ए. ठीक है. तो क्या करना है, स्टार्ट विथ ए, है ना. तो ए एंड दिस इज, इट इज समथिंग डॉस में जो कमांड प्रॉम्प्ट पर एस्ट्रिक होता है ना, ऑल, सेम थिंग लाइक है. ठीक है. सो ऑल द नेम स्टार्टिंग विथ ए. तो दिस percentage stands for one or many, one or many. ठीक है. तो a and after that any number of character. So this becomes a and any number of character. Just like we want to have all the name that ends with something. Suppose ends with s. ठीक है. तो कैसे कमांड देंगे, then we will put s after that. Okay. Any number of character then ends with the s. So we are having this. Okay. So any number of character. And the other one is the other one that we want to try is another wildcard. This wildcard we will be using underscore. Okay. So next one is how to use this one. Just a minute. There is no like that. Okay, there is no one. Okay. A at any place. What about A at any place? Then this A and this. Quote must be closed, otherwise it will have the error. So these all people are having name having A in it mean ना. ठीक है. सबके अंत में कहीं ना कहीं पर A है. The second one I will like to try. Second place पर A किसी का है, हाँ है. तो let's see. Underscore A. Yes. So the command is first character anything, one character, then A, then any number of characters. So what is the difference between these two wild cards? एक wild card ये है और दूसरा ये underscore है. ये होता है one और many, और ये होता है one, maximum one, और ये क्या होगा, any number of, any number, और ये सिर्फ एक के लिए रिप्लेस करता है. सो जैसे अभी हमने यूज किया कि फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी होगा, देन उसके बाद ए होगा, उसके बाद कितने भी नंबर होंगे. लाइकवाइज मैं ऐसा कहा चाहता हूं कि जिसका सेकंड लास्ट कैरेक्टर से ई होगा, सेकंड लास्ट कैरेक्टर. ठीक है. सेकंड लास्ट कैरेक्टर ई होगा, उसके बाद सिर्फ एक ही होगा, और उसके पहले कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सो एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर देन ई देन वन कैरेक्टर मोर maximum. So these are the people having e at the second last character. I hope everyone got it. दो वाइल्ड कार्ड्स हैं लाइक के साथ. एक है ये परसेंटेज साइन, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, and then another is the underscore, each replaces
मैक्सिमम 1 कैरेक्टर, इसका कोई मैक्सिमम नहीं है, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जस्ट लाइक आपके आ, जो वाइल्ड कार्ड्स होते हैं डॉस प्रॉम्प्ट पर, डॉस प्रॉम्प्ट पर भी वाइल्ड कार्ड होते हैं, लाइक जस्ट वांट टू डू dir asterisk डॉट cpp, हाँ, नेम कुछ भी होगा लेकिन एक्सटेंशन cpp होगा, तो ये जो एस्ट्रिक है ये यहाँ पर अंडरस्कोर है ना। ठीक है, सो ये दिस इज द वाइल्ड कार्ड्स हियर, दैट क्लियर। ठीक है, तो ऑल सारे के सारे जो हमारे जो ऑपरेटर्स थे वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेटर, थोड़ा सा किसी ने कहा था रिपीट करना, तो आई विल रिपीट लिटिल बिट ऑफ द, तो क्या सेलेक्ट करने का कमांड है, सेलेक्ट देन कॉलम्स नेम, जो जो कॉलम आपको चाहिए वो नाम आप लगा दीजिए, em piano कॉमा दे दे के कर दे। अगर आपको सभी कुछ देखना है तो सिंपली पुट एस्ट्रिक हियर। ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम, ये हो गया पहला करी। अगर आप इसमें यहाँ कर देंगे तो सारे आ जाएंगे, और अगर आप उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन देना चाहते हैं तो वेयर एंड देन यू हैव टू यूज ऑपरेटर। ठीक है, जैसे हमने यूज किया, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 2500, वेयर सैल ग्रेटर देन 2500 आ गया। ठीक है, वेयर सैल इज बिटवीन 1000 एंड 2000, तो वहां क्या होगा, सैल दो तरीके से यूज हो सकता है, एक है सिंपली यूज बिटवीन, सैल बिटवीन 1000 एंड 2000। ठीक है, बिटवीन 20,000 हो गया, हाँ, इसलिए सारे आ गए। ओके, सो एंड ऑपरेटर हो गया, और ऑपरेटर वेयर 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 डीपीटी है, डीपीटी एनो इक्वल टू से 10, और डीपीटी एनो इक्वल टू 20। ठीक है, ये और हो गया। ठीक है, इस और का एक और वेरिएशन है, जो और का काम करता है वो ऑपरेटर होता है इन, वेयर डीपीटी एनो इन 10 20, तो इट विल हैव द सेम आउटपुट। आई होप मोस्ट ऑफ द थिंग आई, इसके अलावा हमने कुछ कैलकुलेशन करना देखा था, है ना, और कुछ कैलकुलेटेड कॉलम जनरेट किया था। कैलकुलेटेड कॉलम कैसे करना है, आपने क्या करना है, सपोज आई जस्ट वांट ई नेम जॉब sal, then sal into 20%, that is 0.2, edge bonus. Okay, चल ई नेम emp नेम है ना, ई नेम जॉब, हाँ, वाई इट इज बिकॉज हमने टेबल का नाम ही नहीं दिया है ना, सेलेक्ट जॉब सैलेंट बोनस फ्रॉम emp, ऑलवेज टेबल का नाम होना चाहिए, फ्रॉम emp। ओके, सो यू व्हाट अ कैलकुलेटेड कॉलम। ठीक है, एक एडवांस वर्क करता हूँ, और अभी वो है कि नल के साथ कैसे यूज करना है सम को, है ना। सपोज हम चाहते हैं कि सेल और दिखाना है कॉम, और क्या करना है, सेल प्लस कॉम फ्रॉम emp। ठीक है, सो देखो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, सेल और कॉम को आप ऐड कर रहे हैं तो सेलेक्ट होके आ रहा है नल। ओके, यू सी, यू कांट ऐड अ नल विथ अ नंबर। ठीक है, ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट इफ आई वांट टू डू इट,
वी वांट टू डू इट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है। इन माई स्कूल देयर इज अ डिफरेंट फंक्शन एंड ओरेकल अलग फंक्शन है। मैं दोनों बता दे रहा हूँ दोनों क्या होता है। ओरेकल वाला फंक्शन तो यहाँ वर्क नहीं करेगा, लेकिन मैं उसका नाम बता दे रहा हूँ। सो आपको क्या करना पड़ेगा, टू यूज अ फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन इज इफ नल कॉम, जस्ट चेक फर्स्ट, चेक कर लेता हूँ, 0। नाउ यू सी ऐड हो रहा है, ठीक है। इफ नल फंक्शन ये बताता है कि अगर कमीशन या जो भी कॉलम आपने दिया अगर वो नल होगा तो उसको 0 मानेगा, है ना। अगर आपने वहां पर कर दिया कि नहीं इसको 0 नहीं 100 मानना है, देन इट विल डू इट, ठीक है। सो नल को रिप्लेस कर दिया 100 से, तो सेल प्लस कमीशन, नाउ इट इज 900। आई होप एवरीवन इज गॉट इट, कि आप नल होने पर क्या कर सकते हैं, देयर इज अ फंक्शन। और ये ओरेकन में ये इफ नल के जगह फंक्शन होता है एनवीएल, ठीक है। सेम आउटपुट आपको मिल जाएगा, बट इंस्टेड ऑफ इफ नल आपको यूज करना पड़ेगा एनवीएल, ठीक है, नल वैल्यू, ठीक है। सो जो फंक्शंस यहाँ पर हम देख रहे हैं वो सारे फंक्शन जो होते हैं सारे ऑपरेटिंग सारे प्रोडक्ट्स में अवेलेबल होते हैं। सिर्फ थोड़ा सा उसका सिंटेक्स अलग होता है या नाम अलग होता है, ठीक है। नाउ सम इंटरेस्टिंग बिफोर आई लाइक यू टू, मैं कुछ ज्वाइन करना बताना चाहता हूँ आज, तो उसके पहले मैं कुछ इंटरेस्टिंग थिंग दिखाता हूँ, ठीक है। जनरली ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप क्या करें, 2+2 ऐड कर दें, ओके। 2+2 आप ऐड कर दो। नो, इट कांट रन हियर, ऐसे नहीं चल सकता है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते, एसक्यूएल में ऐसा नहीं जोड़ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, ऐसे करना है, सेलेक्ट 2+2, ठीक है। एसक्यूएल में सारे काम क्वेरी के वे में होते हैं, इवन तो नंबर को सम करना है, यू विल डू इट लाइक दैट, ठीक है। सेलेक्ट 2+2। ऑरेकल में ये भी नहीं चलेगा, और यहाँ पर थोड़ा और करना होगा, ठीक है। वहाँ पर फ्रॉम करके एक टेबल का नाम भी देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर टेबल का नाम दिए तो आउटपुट यहाँ पर तो 14 टाइम्स आ जाएगा। तो क्या करो, अगर ओरेकल वाले स्टाइल में करना है तो फ्रॉम टेबल नेम और एक लगा दो लिमिट 1, ठीक है। नाउ इट इज गिविंग ओनली 1, ठीक है। ओरेकल में एक और काम करते हैं, लिमिट 1 की जगह वहां पर करते हैं टेबल एक होता है, वहां पर ड्यूअल नाम का टेबल होता है, ठीक है। उसका यूज कर लेते हैं। एक ऐसा टेबल बना हुआ है जिसमें एक डमी नाम का ना एक एक ही कॉलम होता है, एक ही रो होता है। सो यू कैन डू इट लाइक दैट, ठीक है। सो सेलेक्ट करना है और देखना है भाई, 500 इंटू उसका 5% चाहिए, इंटू 5/100। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपली आप ऐसे करके रन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टेबल वाले स्टाइल में क्या कर देंगे, ये, ठीक है। ओके, सो now the next topic here is that we want to do some uh, joining and aggregate function, ये दो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे सम चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले ज्वाइन करना बताता हूँ, कैसे ज्वाइन हो सकता है। देर आर वेरियस वे टू डू ज्वाइन, है ना। ज्वाइन बहुत लंबा टॉपिक होता है, देर आर बहुत सारे उसके टाइप होते हैं, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, ठीक है। और सबका डिफरेंट टाइप के सीक्वेंस, तीन तरह का उसका क्या बोलेंगे सिंटेक्स होता है। सो आई विल गो फॉर द सिंटेक्स दैट इज वेरी कॉमन एंड दैट विल रन ऑन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो कैसे ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, जस्ट सी कैसे ज्वाइन करेंगे। तो पहले जरा टेबल को देख लें, सेलेक्ट asterisk from emp, this is our table, and select asterisk from
DPT, ठीक है। सो इस दोनों टेबल को ज्वाइन कैसे करेंगे? ज्वाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉमन कॉलम होना चाहिए। दिस इज डिपार्टमेंट नंबर, जो प्रीवियस डे में बता रहा था, फॉरेन किया, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट नंबर के थ्रू हम ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम यूजिंग द सिंपलेस्ट, सबसे इजी जो सिंटेक्स है, आई एम यूजिंग इट सो दैट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। और ये सिंटेक्स सभी जगह काम करेगा, मैन इट विल वर्क इन ओरेकल आल्सो। तो कैसे ज्वाइन करना है? आई जस्ट वांट टू सी, ज्वाइन करके क्या करना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू सी द नेम, जॉब, एंड instead of department number I just want department name and as well as location. तो कैसे करेंगे? uh, uh, select asterisk from, अब क्या करना है? सेलेक्ट पूरा नहीं करना, मैं कुछ सेलेक्टिव करता हूँ। सेलेक्ट ई नेम, ई नेम चाहिए यहाँ से, दैट्स ऑल, ठीक है। जॉब भी ले लेता हूँ, यहाँ से जॉब चाहिए। फिर दूसरे वाली जो टेबल है उससे हमें चाहिए डीपीटी, डी नेम चाहिए, है ना, डी नेम चाहिए। और क्या चाहिए? लॉक चाहिए। फ्रॉम, अब टेबल कौन सा है? दो टेबल है, ईएमपी और दूसरा क्या है? डीपीटी। अब हमें ज्वाइनिंग का कंडीशन चाहिए, वेयर। अब कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? क्या कॉमन है? इट इज डिपार्टमेंट नंबर, वेयर ईएमपी डॉट डीपीटी एनओ इक्वल टू डीपीटी dot dpt ano. So you see the table has been joined and सबका corresponding डिपार्टमेंट नाम और लोकेशन आ गया, ठीक है। अब बोलो कि मैं डिपार्टमेंट का नंबर भी प्रिंट करा लेता हूँ तो क्या होगा? सो आई जस्ट वांट टू प्रिंट द डिपार्टमेंट नंबर dpt ano. Now we are going to have some problem. क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर इज देयर इन बोथ ऑफ द टेबल एंड यू डोंट नो, क्वेरी को ही नहीं पता कि किस टेबल से वो डिपार्टमेंट नंबर चाहिए आपको, बिकॉज इट इज अवेलेबल। तो ऐसी हालत में आप क्या कर लें कि इसके आगे स्कीमा का नाम दे दें। सो आई जस्ट वांट, किसी से भी लेंगे, इट इज कॉमन। तो हम यहां से चाहते हैं emp डॉट, नाउ इट इज क्लियर। तो इसलिए एक और सिंटेक्स होता है व्हेन we are using lot many tables and all the columns have very long names, है ना, बहुत लंबे नाम होते हैं। तो बार बार पूरे टेबल का नाम नहीं लिखना पड़े, सो इसलिए क्या करते हैं कि when we join the table हम एक एलियास लगाते हैं, empe dpt, कुछ भी नाम रख सकते हैं, है ना, e। और जो प्रिंट कराना है वहां पर आपको वो नाम बताना पड़ेगा। emp कहाँ से आएगा? e से आएगा, e डॉट ई नेम, ठीक है। जॉब कहाँ है? ई डॉट जॉब, ठीक है। ई एम पी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, अब ये ई लिख देता हूँ, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। डी डॉट डी नेम, डी डॉट लॉक फ्रॉम, अब यहाँ पर भी उसी तरह हमें चेंज कर लेना चाहिए, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट लॉक। सो दिस इज कॉल्ड यूजिंग नेम एलियास, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर में स्टैंडर्ड सिंटेक्स ये होता है, ऑलवेज गिव द नेम ऑफ द स्कीमा, emp डॉट ई नेम, emp डॉट जॉब, है ना, इस तरह से आपको लगाना चाहिए। सो दिस मेक योर द नेम ऑफ द कॉलम क्लियर फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, ठीक है। सो एनीवन हैव अ क्वेरी कि मैं क्या इसमें से शो कर सकता हूँ ज्वाइन करके? व्हाट यू वांट टू सी, जिसका मैं क्वेरी बना दूं? If anyone has any particular query in mind, just just type it there. I will create query for that. Okay. So I just want to know all the people who are
वर्किंग एट से डेलास, डेलास में जो लोग काम कर रहे हैं, आई जस्ट वांट टू शो ओनली दोज पीपल, कौन लोग डेलास में काम कर रहे हैं। सो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और ये हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसको ही रहने देते हैं, है ना। एक बार वेयर लग गया, आप एक बार और एंड लगा दीजिए। एंड एंड लोकेशन डेलास से किस टेबल से आ रहा है, ये आ रहा है डिपार्टमेंट नंबर टेबल से, डिपार्टमेंट टेबल से। तो डी डॉट लॉक इजकल टू, अब यहां पर आप डाल दो डेलास। सो दिस पीपल आर वर्किंग एट डेलास। ठीक है, सो ऑल द पीपल, just want to make uh, who is the manager working at Chicago, शिकागो में मैनेजर कौन है। हाँ, I just want to add some more uh, complexity. Who is the manager at Chicago, शिकागो में मैनेजर कौन है। So I just want to add more constraint here और filtering करता हूँ। So I just want who is, I just want to see the bottom, मेरा क्वेरी में दिख नहीं रहा है। Dallas, and you can add as many as and job कहाँ से आ रहा है, ई से, तो ई डॉट जॉब इज इक्वल टू मैनेजर। MANAGER, I think. Okay. And city I want Chicago instead of Dallas. So just put it there. CHICAGO, Chicago. So Mr. Black is manager at Chicago. Okay, so this is the way you can join. This is the simplest syntax. ठीक है, ये simplest syntax है join करने का, but there are even more complicated syntax. ठीक है, ये syntax जो है, it you will find it, ये Oracle में भी चलेगा, है ना, और सभी जगह चल सकता है। ठीक है, लेकिन देर इज ऑन वन, एक और सिंटेक्स है जिसको जहां पर यूज करते हैं, इनर ज्वाइन कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, सो इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं वो सिंटेक्स दिखाता हूँ। ठीक है, तो द सेम थिंग, आई जस्ट वांट टू ज्वाइन दिस टू टेबल using another syntax. Now its syntax is a little bit complicated, so I just want to start from the beginning. मैं beginning से लिखता हूँ। select e, चलो पूरा नाम अभी यूज करूँ नहीं, e डॉट e name and e dot job, then d dot d name and d dot location lock। अब हमें कहाँ से चाहिए, सॉरी, फ्रॉम कहाँ से चाहिए, फ्रॉम emp। now the syntax is little bit complicated here। table 1 inner join, दूसरा टेबल का नाम dpt। ठीक है, टेबल 1 being joined with table 2 on which column, so on। अब ऑन करके वो कॉमन वाला देंगे, तो ऑन अपने क्या करना है, emp के जगह हमने यूज कर लिया है, emp के जगह emp e inner join dpt
D on E dot BPT. I know now thing is little bit complicated it looks, but it is not as so. प्रैक्टिस करने पर ये बहुत इजी हो जाएगा. E dot department number is equal to D dot DPT. No, I hope it is correct. So you got it. So this is the another syntax. It is called the ANSI syntax. जहां पर आप क्या करते हैं, ज्वाइन जो करते हैं वो वेयर का यूज करके नहीं करते हैं. ओके, आई होप एवरीबॉडी इज गॉट इट. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट दिस इज नाउ अडेज, आजकल जो है इसको ही ज्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है. ऊपर वाला जो टेक्निक था बहुत इजी था, सिंपल. आपने वेयर के सारे आपने ज्वाइन कर लिया. यू कैन सी, अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं. ठीक है, ज्वाइन कैसे हो रहा है, वेयर के आधार पर हो रहा है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, आई जस्ट शो यू. सो देखिए ज्वाइन क्या हो रहा है, दिस इज हियर, वेयर के सारे हो रहा है. ओके, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप फ्रॉम में पहला टेबल, इनर ज्वाइन दूसरा टेबल, ऑन, और यहां ऑन में जाकर आप क्या कर रहे हैं, वो क्राइटेरिया बता रहे हैं. आई होप एवरीवन इज गेटिंग इट. ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर सीधे वेयर के सारे यूज हो गया, यहाँ पर वेयर नहीं. वाई, बिकॉज नए सिंटेक्स जो बनाया गया है एनसी का, वहां बोल रहे कि वेयर के सारे तो आप फिल्टरिंग करते हैं, तो ज्वाइन करने का काम वेयर के सारे नहीं करें. ठीक है, वेयर लीव फॉर द फिल्टरिंग एंड फॉर द ज्वाइनिंग यूज समथिंग एल्स. तो वो समथिंग एल्स क्या है, ये है, दिस इज द. ठीक है, अब यहाँ पर यूज करते हैं इनर ज्वाइन. ठीक है, इनर ज्वाइन मीन्स इक्वी ज्वाइन, इक्वालिटी, जो मैच करता है बस उसको ही दिखाता है. और ये डिफॉल्ट जो ज्वाइन होता है ये इसी को बोलते हैं इनर ज्वाइन. इनर ज्वाइन मीन्स जहां पर कॉलम मैच किया. ठीक है, यू कैन सी दैट वी हैव अ डिपार्टमेंट नंबर 40 ऑल्सो एंड देयर इज नो एम्प्लॉय इन इट. ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 40 में एक भी एम्प्लॉय नहीं है. ठीक है, सो वो नहीं आएगा. ठीक है, इज इट क्लियर. तो इनर ज्वाइन क्या हुआ, ये इनर ज्वाइन ही है, डिफॉल्ट ज्वाइन इनर ज्वाइन है, जहां पर दोनों मैच करता है सिर्फ उसको प्रिंट करता है. सो आई जस्ट रिपीट द सिंटेक्स फॉर द ज्वाइन. ज्वाइन के मैं सिंटेक्स बताता हूँ फिर से, है ना, दोनों सिंटेक्स है ना. आई जस्ट रिपीट विद बोथ द सिंटेक्स. तो पहला सिंटेक्स क्या है, दैट इज मोस्ट कॉमन सिंटेक्स. इट विल रन इन ऑल द प्रोडक्ट, जितने भी आप प्रोडक्ट हैं, ओरेकल हो या माइस्क्वेल हो, सब जगह चलेगा. ठीक है, क्या तरीका है, आई रिपीट, मेरे पास जो पहले है उसी को ले आता हूँ. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इवन जस्ट कम बैक, है ना, यस या. तो आपने सारे कॉलम का नाम दे दिया. फ्रॉम में अगर आप तीन मोर देन टू टेबल हो, देयर विल बी 3 4 5 6 7 8, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आप ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, मैं 3 का ज्वाइन करके दिखा दूंगा अभी. तो what we are doing, give the name of the columns, then give the name of the tables, and after that give the criteria how they are being joined. तो कॉमन जो होंगे, जिनका डोमेन कॉमन होगा, उसके सारे ज्वाइन करेंगे. तो वो जनरली क्या होगा, फॉरेन वाला की जो होगा वही होगा. तो डिपार्टमेंट नंबर इज द column that is the primary in one and foreign in another, और that is the common column है. तो वो उसके सारे हमने इसको ज्वाइन कर लिया. बट देयर वाज अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या हुआ था कि इफ यू वांट टू प्रिंट अ कॉलम जहां पर जैसे डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट कराना चाहता हूं, तो फिर यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि डिपार्टमेंट नंबर कहाँ से आ रहा है. तो इन दैट केस यू जस्ट गिव द नेम ऑफ द टेबल इन फ्रंट. सो ये क्या हो जाए, क्लैरिफाई हो जाए. ठीक है, तो अगर सारे के सारे कॉलम को क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो यू कैन यूज
एलियास है ना, ईएमपी के जगह आपने एक छोटा सा एलियास लगाया, सॉर्ट एंड दैट। काफी बहुत सारे ऐसे टेबल स्कीमा होते हैं जहाँ टेबल का नाम और कॉलम का नाम काफी लंबा लंबा होता है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, है ना, हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पर एलियास यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक आई शो यू वन स्कीमा। मैं आपको दिखाता हूँ कॉम्प्लिकेटेड। दिस इज एम्प्लॉय, ओके, and I want to show you uh, employee. इसका मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, इसको शो करना चाहता हूँ, है ना। ये तो है एम्प्लॉय, इसमें टेबल्स कितने, एम्प्लॉय, ठीक है। यूज EMPLOYEES employees. It is working. Now I just want to show tables. So it has a lot of table. यहाँ पर सैलरी अलग है, एम्प्लॉय अलग है ना। आप इन सब को देखना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, देर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज द नेम ऑफ दिस ऑल tables and everything is very very long, है ना। तो I just want to show you one thing. I have made a any, just I just want to show you one interesting. Okay, just wait. So you can see a lot of tables are there and they all are, मैंने पिछले दिन भी दिखाया था, है ना। इसको हमने पहले भी दिखाया था, लेकिन आज इस क्या है कि आज वी कैन डू द क्वेरी ओवर इट, हम इसके ऊपर क्वेरी करने कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर कैसे क्वेरी कर सकते हैं वो करके दिखाता हूँ अभी। जॉब हिस्ट्री, लोकेशंस इज हियर, थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा। एम्प्लॉयज, रीजन, डिपार्टमेंट, कंट्रीज, little bit complicated situation है, just wait. I show you the complex structure here and I'll see you कि इसको मिलाकर हम कैसे बड़ा complicated query बना सकते हैं। jobs, employee, country, region, departments, नीचे नहीं है कुछ, let's move little up, uh, just wait, it's very complicated structure here. So I think that locations belongs to region and each region has many country. Now department are as locations and employee works for certain department.
one table left. Which one is there? Jobs. Now I have a complex situation here. अब यहाँ पर लंबा लंबा अगर हमारे पास नेम है, so how you are going to remember? हाँ, तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर एलियास यूज करने होंगे. जस्ट आई वांट टू सी ऑल द पीपल दे आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री. अब कंट्री का इंफॉर्मेशन कैसे ज्वाइन में मिलेगा? तो डिपार्टमेंट में कंट्री नहीं लिखा हुआ है. डिपार्टमेंट में क्या है? डिपार्टमेंट आईडी है. डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी है, तो यहाँ से हम इसको डिपार्टमेंट से जोड़ेंगे. डिपार्टमेंट में लोकेशन का आईडी है, उससे हम इसको कहाँ से जो हैं, लोकेशन से जोड़ेंगे. लोकेशन में कंट्री आईडी है, तो उससे हम कंट्री को जोड़ेंगे. ठीक है. तो और कंट्री आईडी जो है, यहाँ से कंट्री नेम मिलेगा. सो तो गेटिंग अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय वर्किंग इन दिस कंट्री, आई हैव टू ऐड इट टू द कंबाइन इट विद द हमारी जो क्वेरी होगी, इसको ज्वाइन करना होगा. 3-4 टेबल से हमें ज्वाइन करना पड़ेगा. सो दिस आर द एक्चुअल सिचुएशन व्हेन वी हैव अ लिटिल बिग टेबल स्ट्रक्चर. जनरली जो हमारा बिजनेस केस होता है, वहां पर इसी तरह की सिचुएशन होती है. ठीक है. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट बिकॉज इट इज वेरी बिग. लेकिन मैं यहाँ पर नए तरह के क्वेरी दिखाता हूँ. आई जस्ट वांट टू शो यू वेरी इंटरेस्टिंग क्वेरी, डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइन हियर. तो ये जो अभी हमने बनाया था, लास्ट क्वेरी जो हमने बनाई थी, वो कौन सा क्वेरी बनाया था? ये हमने बनाया था इनर ज्वाइन, है ना. तो जितना भी अभी बना रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? इनर ज्वाइन है. आई जस्ट वांट टू शो यू द लास्ट वन. या सो दिस इज कॉल्ड इनर ज्वाइन. इनर ज्वाइन अभी तक जितना भी क्वेरी किया है वो सारे के सारे क्या है? इनर ज्वाइन है. इनर ज्वाइन मीन्स जो कॉमन होंगे वही मिलेंगे. सो व्हाट आर द अदर ज्वाइन? देयर इज अ आउटर ज्वाइन. आउटर ज्वाइन दो तरह के होते हैं, लेफ्ट एंड राइट. ठीक है. एक्चुअली में दोनों अलग नहीं होते, लेफ्ट एंड राइट अलग नहीं होते. बस ये बताना पड़ता है कि लेफ्ट साइड में कौन सा है और राइट साइड में कौन सा है. लेकिन बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू डू यू a query that is called the self join. I just want to show you very interesting query that is called the self join. Self join क्या होता है देखें. हम EMP को एक बार देख लेते हैं. मैं बताता हूँ कि क्या सिचुएशन यहाँ पर. पहले select asterisk from EMP. So you see, आप मैनेजर को देखें. आप मैनेजर को देखें. what is the मैनेजर में है क्या? What's there in manager? It is employee number. ठीक है. मैनेजर क्या है? एम्प्लॉय नंबर है. ठीक है. तो स्मिथ के सामने मैनेजर है 7902. 7902 ये किसी न किसी का एम्प्लॉय नंबर होगा. 7902 फोर्ड. इसका मतलब क्या है? स्मिथ का मैनेजर कौन है? फोर्ड है ना. अब फोर्ड का एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है भाई? इट इज 7566. 7566. 7566 इट इज जॉन्स. ठीक है. उसके मैनेजर कौन है? जॉन्स है. जॉन्स का मैनेजर कौन है? 7839. हु इज 7839? इज द किंग प्रेसिडेंट. किंग है. इनका मैनेजर कौन है? नल. इनका कोई मैनेजर नहीं है. इज द बॉस. ठीक है. सो आई जस्ट वांट टू लिस्ट हु इज द मैनेजर ऑफ हु. ठीक है. तो हमें ज्वाइन करना होगा. किसके आधार पर ज्वाइन करना होगा? इस एमजीआर को ज्वाइन करना होगा ईएमपीएनओ से. इस दोनों कॉलम के आधार पर ज्वाइन करना होगा. ठीक है. एमजीआर एंड ईएमपीएनओ से, बिकॉज बोथ आर कमिंग फ्रॉम द सेम डोमेन बट दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम द सेम टेबल. सो क्या करेंगे? इसको ज्वाइन करेंगे. कैसे ज्वाइन करेंगे? दिस इज सेल्फ ज्वाइन. यू सी, आई वांट select, I'm sorry, select ename, select ename, ename और क्या चाहिए दिखा दो. ename दो टेबल अभी बनाने हैं. ठीक है. तो पहले का नाम रख लेता हूँ x.
x डॉट ई नेम, दूसरा साथ में इसका जॉब भी ले लेते हैं, x डॉट जॉब, और क्या चाहिए, y, अभी नाम आगे देना होता है एलियास, y डॉट ई नेम, y डॉट job, sorry, job from emp emp x and emp y, दोनों साइड में अपने ही है ना। वेयर वेयर अब क्या करें, वेयर x dot empno is equal to y dot mgr, let's have it। so ये देखो, ठीक है, तो x is the employee and y is the manager, ठीक है। नहीं सॉरी, x इज द, मैंने इधर के क्या लिया है, इधर EMPNO और इधर MGR का लिया है, ठीक है। तो इधर जो है ये मैनेजर है, इधर इसका एम्प्लॉय है, आ रहा है ना। आप ये नेम को थोड़ा यहाँ पर इंप्रूव कर लें, एज GER, और इधर कर देता हूँ एज स्टाफ कर देता हूँ, ठीक है। सो इज मैनेजर, हिज स्टाफ, हिज मैनेजर, हिज स्टाफ, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेरी, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ ज्वाइन। क्या हो रहा है, table is getting joined with itself, okay। So next day we will be continuing with the join and some more interesting queries that we will be doing tomorrow. Don't miss the class, okay। If anyone has any query, so now the time is getting over, so we will continue. You have any query, you can ask tomorrow, okay। So thanks for joining everyone. I hope you find this session useful and interesting, okay।